नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सोल परफेक्शन, फ्रांसिन मटेरियल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिल्विया ब्राउन। सोल परफेक्शन, channel material. I cannot experience your God center. I may know it is there, but it is individual. Your karmic life experience is totally different from mine. That is what makes us so alone. No one can ever be uniquely like you. There is only one of you in the whole of universe. Your experience and karma are different from anybody else. Each time you empty yourself out in life, you get deeper. If you never do it, you stay very small and shallow. So give it all and keep giving it all. You will still lose people in this life, but only on this earth plane. And it is for a reason. Very few things are meant to be permanent on this plane. In giving up everything, there is a blessing from God. In giving it all up, something fills you up. That something, of course, is God. Do not choose to love people who are not worthy of your love. You cannot be fighting around with something that becomes stale to you. The staleness you feel will become freshness to someone else. Think of the journey of your soul. You wind your way through life, experiencing, loving, caring, giving it all up. Think of yourself as a beacon of light. Go out and tell people your beliefs, how you feel about things. Get rid of your guilt and negativity. Make your positive circle wider. Don't you dare let anybody treat you as less than God, because you are God. You are moving, breathing spark of God. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सोल परफेक्शन, फ्रांसिन मटेरियल, असर फ्रॉम सिल्विया ब्राउन। सोल परफेक्शन, चैनल मटेरियल। I cannot experience your God center. I may know it is there, but it is individual. Your karmic life experience is totally different from mine. That is what makes us so alone. No one can ever be uniquely like you. There is only one of you in the whole of universe. Your experience and karma are different from anybody else. Each time you empty yourself out in life, you get deeper. If you never do it, you stay very small and shallow. So give it all and keep giving it all. You will still lose people in this life, but only this earth plane. And it is for a reason. Very few things are meant to be permanent on this plane. In giving up everything, there is a blessing from God. In giving it all up, something fills you up. That something, of course, is God. Do not choose to love people who are not worthy of your love. You cannot be finding around with something that becomes stale to you. The staleness you feel become freshness to someone else. Think of the journey of your soul. You wind your way through life, experiencing, loving, caring, giving it all up. Think of yourself as a beacon of light. Go out and tell people your beliefs, how you feel about things. Get rid of your guilt and negativity. Make your positive circle wider. Don't you dare let anybody treat you as less than God, because you are God. You are a moving, breathing spark of God. आए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सुलिया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश लिए गए हैं। मैं आपके ईश्वर केंद्र का अनुभव नहीं कर सकता। मुझे पता है कि यह वहां है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। आपको कर्म जीवन अनुभव मेरे से बिल्कुल अलग है। यही बात हमें इतना अकेला बनाती है। कोई भी कभी भी आपके जैसा अद्वितीय नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड में आप जैसे केवल एक ही हैं। आपका अनुभव और कर्म किसी और से अलग है।
हर बार जब आप जीवन में खुद को खाली करते हैं तो आप और गहरे होते जाते हैं। अगर आप ऐसा कभी नहीं करते तो आप बहुत छोटे और उथले रह जाते हैं। इसलिए अपना सब कुछ दे दो और सब कुछ देते रहो। आप इस जीवन में भी लोगों को खो देंगे, लेकिन केवल इस पृथ्वी तल पर। और इसका एक कारण है, इस तल पर बहुत कुछ चीजें स्थायी होती हैं। सब कुछ त्यागने में ईश्वर का आशीर्वाद है। सब कुछ त्यागने से आपको कुछ मिलता है, वह कुछ बेशक ईश्वर है। ऐसे लोगों से प्रेम ना करें जो आपके प्रेम के योग्य नहीं है। आप किसी ऐसी चीज के साथ नहीं रह सकते जो आपके लिए बासी हो गई है। आपको लगता है कि किसी और के लिए ताजा हो जाएगा। अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में सोचो। यह जीवन का अनुभव करते हुए, प्यार करते हुए, देखभाल करते हुए, सब कुछ त्यागते हुए अपना रास्ता बनाइए। अपने आप को जीवन के प्रकाश स्तंभ के रूप में सोचें। बाहर जाइए और लोगों को बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। अपने अपराध बोध और नकारात्मकता से छुटकारा पाइए। अपने दंडात्मक घेरे को व्यापक बनाएं। किसी को भी अपने को ईश्वर से कम ना समझने दें, क्योंकि आप ईश्वर हैं। आप ईश्वर की चलती फिरती सांस लेती चिंगारी हैं। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। आत्मा की पूर्णता, सिल्विया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश लिए गए हैं। मैं आपके ईश्वर केंद्र का अनुभव नहीं कर सकता। मुझे पता है कि यह वहां है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। आपका कर्म जीवन अनुभव मेरे से बिल्कुल अलग है। यही बात हमें इतना अकेला बनाती है। कोई भी कभी भी आपके जैसा अद्वितीय नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा केवल एक ही है। आपका अनुभव और कर्म किसी और से अलग है। हर बार जब आप जीवन में खुद को खाली करते हैं तो आप और गहरे होते जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कभी नहीं करते तो आप बहुत छोटे और उथले रह जाते हैं। इसलिए अपना सब कुछ दे दो और सब कुछ देते रहो। अपना आप इस जीवन में लोगों को खो देंगे, लेकिन केवल इस पृथ्वी तल पर इसका एक कारण है। इस तल पर बहुत कुछ चीजें स्थायी होती हैं। सब कुछ त्यागने में ईश्वर का आशीर्वाद है। सब कुछ त्यागने से आपको कुछ मिलता है, वो कुछ बेशक ईश्वर है। ऐसे लोगों से प्रेम ना करें जो आपके प्रेम के योग्य नहीं है। आप किसी ऐसी चीज के साथ नहीं रह सकते जो आपके लिए बासी हो गई हो। आपको लगता है किसी और के लिए ताजा हो जाएगा। अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में सोचो। या जीवन का अनुभव करते हुए, प्यार करते हुए, देखभाल करते हुए, सब कुछ त्यागते हुए अपना रास्ता बनाइए। अपने आप को जीवन के प्रकाश स्तंभ के रूप में सोचें। बाहर जाइए और लोगों को बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। अपने अपराध बोध और नकारात्मकता से छुटकारा पाइए। अपने दंडात्मक घेरे को व्यापक बनाएं। किसी को भी अपने को ईश्वर से कम ना समझने दें, क्योंकि आप ईश्वर हैं। आप ईश्वर की चलती फिरती सांस लेती हुई चिंगारी हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।